Next number is, second is whole number. What is whole numbers? आपको पता है कि नेचुरल नंबर हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो हम नेचुरल नंबर की सीरीज से के पहले यदि 0 इंक्लूड कर दें तो वो हमें किसकी सीरीज मिल जाएगी? होल नंबर की सीरीज मिल जाएगी। किसकी सीरीज मिल जाएगी? होल नंबर की। सो अ नंबर which can be written in the form of 0, 1, 2, 3, 4 and so on infinity is called whole number. Number. In other word, क्या कर सकते हैं आप? When we include 0 before natural number, we get all whole numbers. All whole numbers. Okay? See, it is denoted by Y, capital W, and the set means बेटा ग्रुप, पूरे होल नंबर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना सेट कहलाता है। सेट ऑफ होल नंबर्स इज और whole number, the set of whole numbers are represented by Y, W equals to in curly bracket 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on infinity. You can see this is natural number. So you can say all natural numbers are whole number. आप कह सकते हैं कि सभी की सभी नेचुरल नंबर जो होती हैं होल नंबर्स होती हैं। ओके? एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, the smallest whole number equals to 0. Same natural number, same as natural number. You can't define the largest whole number. The largest not defined. Okay beta? Write down. Next number is integer numbers.
integers. Integer numbers also called integers. Okay, what is integers? All natural number number 0 and negative of all natural number. Numbers are called integers. All natural numbers 0 and negative of all natural numbers are called integer. In other word, first you write down beta. In other words, a number which can be written in the form of -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 are called integer numbers. Okay, the numbers which can be written in the form of like this are called integer numbers. It is denoted by capital I. Okay, and the set of integers and the set of integers are set of integers minus infinity dot dot -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on plus infinity. Beta, see here, these are natural number. Natural numbers. Okay, and these are negatives of natural number. Negative of natural number. Okay, and this is 0. This is 0. So you can see here all natural numbers and all negatives of natural number including 0 are called integers. All natural numbers 0 and negatives of
all natural numbers are called integer. In other words, the numbers which can be written in the form of like this are called integer numbers. Okay? You can't define the smallest integer number and largest integer number. Okay? Because आप देखेंगे 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है। बेटा एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, निगेटिव नंबर देखने में जितना बड़ा होता है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ओके? अगर आपसे पूछा जाए कि +1 और -2 में विच नंबर इज ग्रेटर, 1 इज ग्रेटर। ओके? इफ आपसे मैं यहाँ पे पूछूं -2 और -4 में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए। जब दो पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा ही होता है, बट व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन टू निगेटिव नंबर्स हो, जब दो निगेटिव नंबर्स के बीच में कंपेयरिंग हो तो जिस नंबर का मैग्नीट्यूड कम होता है वो निगेटिव नंबर बड़ा होता है। या फिर आप माइनस साइन हटा के देखिए, 2 और 4 में 2 बड़ा होता है, सॉरी 2 और 4 में 2 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है। लेकिन जब इसमें निगेटिव साइन हो जाता है तो ये इसका रिवर्स हो जाता है, -2 इज ग्रेटर देन -4 हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। देखने में जो नंबर छोटा होता है निगेटिव साइन लगने पे वो नंबर, जब दो निगेटिव नंबर्स का कंपेयर होता है तो छोटा नंबर जो होता है मैग्नीट्यूड जिसका कम होता है वो निगेटिव नंबर ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले नंबर से बड़ा होता है। ओके? आपसे यदि पूछा जाए कि -10 में और -1000 में बड़ा कौन सा है तो आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि -10 इज ग्रेटर देन -1000। ओके? राइट डाउन। सो नेक्स्ट नंबर इज rational number. What is rational number? A number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equals to 0. In definition of integers, Yusha, integers are negative, 0 and positive all types. इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और आपके क्या होते हैं? 0 भी इंक्लूड होता है आपके इंटीजर नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाई q के फॉर्म में राइट कर सके, और p q क्या है? इंटीजर्स है, मीन्स ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन रखी है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, p 0 के इक्वल्स टू हो सकता है लेकिन q 0 के इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। बेटा q 0 के इक्वल्स टू क्यों नहीं होना चाहिए? यदि p बाई q में q 0 हो गया तो यानी p बाई 0, और आपको पता है 1 बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। ओके? इसलिए q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कंडीशन है कि p बाई q आपके इंटीजर्स हो और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। सी सम एग्जाम्पल लाइक एज, आप अब यहाँ पे आप 8 को देख सकते हैं कि इसमें ये तो p बाई q के फॉर्म में राइट नहीं है, तो ये कैसे रैशनल नंबर हो सकता है? आप 8 को 8 बाई 1 यदि राइट करते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। आप 8 बाई 1 लिखें या 8 लिखें, एक ही वैल्यू होती है, 8 होती है, लेकिन ये p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। व्हेन वी राइट 8 बाई 1 then it is represent in the form of p by q, so 8 is also rational number. So you can say all natural numbers
all whole numbers and all integer numbers are rational number, but it is not necessary all rational numbers are natural number or whole number or integer numbers, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स, सारे आपके इंटीजर नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। ये नेसेसरी है कि वो रैशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? आप सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दीजिए, वो PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट नंबर इज, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि सारे रैशनल नंबर जो है वो आपके नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर नंबर्स हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? आपने देखा ऑड नंबर में, आपने देखा कि ऑड नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते, या फिर वो वंस प्लेस वैल्यू क्या रखते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो आपका वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रखते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से इवन और कौन कौन से ऑड नंबर प्राइम नंबर में इंक्लूड है। तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर होते क्या है। दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जिनसे वो गिवन नंबर डिवाइड हो। ऐसे नंबर फैक्टर्स मीन्स डिवाइजर। ओके, those numbers which have only 2 factors are divisor. First factor is 1 and second factor is itself. यानी कोई ऐसा नंबर जो या तो 1 से कंप्लीट डिविजिबल हो या खुद उसी नंबर से डिविजिबल हो, बाकी किसी और दूसरे नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता, वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। आप यहाँ पे गिवन नंबर्स देख सकते हैं कि 3 केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 11, 13, 17, 19, 23, 29। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे शायद ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है ना। 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी ऑल इवन नंबर्स कैसे हैं? ऑड नंबर हैं। ओके, सो यू कैन से द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का रिवर्स होता है। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स ओनली रखता है, इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखते हैं, यानी ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। सी सम एग्जाम्पल 4, 6, 9, 10 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे यू कैन सी हियर 4 हैविंग 3 फैक्टर्स 1, 3 एंड 4. 4 is also divisible by 1, 2 and 4. Similarly 6 is also divisible by 1, 2, 3 and 6. आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स इधर राइट है, इन सभी फैक्टर्स से ये गिवन नंबर क्या हो रहे हैं? कंप्लीट डिविजिबल हो रहे हैं. सो यू कैन से द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज द smallest smallest composite number equals to 4. ठीक बेटा, समझ में आ गया? ओके, राइट डाउन. Next number is co-prime numbers. Okay, what is co-prime number?
Co-prime numbers are those numbers which have no common factor other than 1. Means ऐसे numbers जिनके बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर हो और वो भी 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वे नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। और यू कैन से विच हैव HCF, which have the HCF as 1, means उनका HCF क्या हो? 1 हो। See some examples. 4 and 9, 8 and 15. Factors of 4 is 2 into 2 into 1 and factors of 9 is 3 into 3 into 1. Okay? Common factors between factors of 4 and 9 is 1. आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 9 के फैक्टर्स में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है? यस है। वो क्या है? 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। सो HCF इज 1. सो यू कैन से 4 and 9 आर को प्राइम नंबर्स. 4 and 9 आर को प्राइम नंबर्स. ओके. सिमिलरली 8 and 15, 8 having these factors and 15 having these factors, and common factors between 8 and 15 is 1. आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 15 के फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो, जिससे इनका HCF क्या है? 1 है। HCF आपका क्या होता है? ऐसे गिवन नंबर्स में ऐसे फैक्टर्स जो सभी नंबर्स में कॉमन हो, सभी नंबर्स के फैक्टर में कॉमन हो, उनका प्रोडक्ट क्या होता है? HCF होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनका HCF क्या है? 1 है। और यही आपका डेफिनेशन को प्राइम नंबर का कहता है कि ऐसे नंबर्स जिनके बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो या फिर जिनका HCF 1 हो, वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके बेटा, नंबर सिस्टम अभी आपको डिटेल में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आपकी क्लास आज यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। आपके पास 1 दिन का टाइम है, आप बुक परचेज कर लीजिए। यदि आपके पास बुक ना हो तब तक आप जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है, जो भी जितने वीडियोस आप तक पहुंच चुके हैं, आप उनको फिर से रिवाइज करिए। वो अगर आपने उसको कंप्लीट वॉच नहीं किया तो आप उसको कंप्लीट वॉच करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।